Wall Street and Main Street, but everybody seems to be in for some economic pain. How economically painful is it going to get for people in this country? And I do have one more question. First of all, there's no doubt that when a major nuclear power attacks and invades another country, that the world is going to respond, and markets can respond all over the world. So there's no doubt about that, number one. Number two, the notion that this is going to last for a long time is highly unlikely as long as we continue to stay resolved in imposing the sanctions we're going to impose. अगर हम sanctions पुतिन पर लगाते रहेंगे, एक साथ रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये सब ज़्यादा लंबा नहीं खिंच पाएगा. Putin, and would you still describe him the way that you did in the summer as a worthy adversary? At the time, he was, I made it clear, as an adversary, and I said he was worthy. I didn't underestimate him. And I've read most of everything he's written. Did you read I shouldn't, I'm not a wise guy. You heard the speech he made, almost an hour's worth of speeches, why he was going into Ukraine. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. पुतिन का इरादा यूक्रेन पे कब्जा करने का है, पुरानी सोवियत यूनियन को बनाने का. Are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. And you're confident that these devastating sanctions are going to be as devastating as Russian missiles and bullets and tanks? Yes, Russian bullets, missiles, and tanks in Ukraine. Yes, I am. हमारे जो sanctions होंगे वो रशिया के tanks, missiles और बुलेट से भी ज़्यादा खतरनाक हैं. I didn't say sanctions couldn't stop him. You've been talking about the threat of these sanctions for several weeks now. Yes, but the threat of the sanctions and imposing the sanctions and seeing the effect of the sanctions are two different things. They're two different things. And we're now he's going to begin to see the effect of the sanctions. आप जब sanctions का इफेक्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो sanctions कितने खतरनाक हैं. हम खाली धमकी नहीं दे रहे हैं. समय दीजिए. इन sanctions का असर रूस के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है. You said in recent weeks that big nations cannot bluff when it comes to something like this. You recently said that the idea of personally sanctioning President Putin was on the table. Is that a step that you're prepared to take? And if not, it's not a bluff, it's on the table. Sanctioning President Putin? Yes. Why not sanction him today, sir? Mr. President? Why not sanction him today, sir? Mr. President, if I can, you detailed some severe and swift new sanctions today and said the impact it will have over time. But given the full-scale invasion, given that you're not pursuing disconnecting Russia from what's called SWIFT, the international banking system, or other sanctions at your disposal, respectfully, sir, what more are you waiting for? Specifically, with the sanctions we've imposed exceed SWIFT. The sanctions we imposed exceed anything that's ever been done. जो हमने sanctions लगाए हैं, वो SWIFT से कहीं गुना ज़्यादा बड़े हैं. बल्कि हमने जो sanctions लगाए हैं, वो किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं. In another month or so to see if they're working. Yes. Can I ask you about Zelensky? Sir, you spoke to Vladimir Zelensky yesterday, sir. What's the risk that we are watching the beginning of another Cold War, and is there now a complete rupture in U.S. and Russian relations? There is a complete rupture right now in U.S.-Russian relations if they continue on this path that they're on. And in terms of a Cold War, that depends. You have the vast majority of the rest of the world in total opposition to what he's doing, from Asia to South America to Europe to around the world. And so it's going to be a cold day for Russia. The idea, you don't see a whole lot of people coming to his defense. रूस और अमेरिका के संबंध अभी सबसे खराब हो चुके हैं. और अगर बात कोल्ड वॉर की जाए तो ये समय बताएगा कि रशिया के साथ कितने लोग हैं. लेकिन इस वक्त ज्यादातर लोग अमेरिका के साथ हैं और रशिया के लिए ये एक बहुत कोल्ड डे है. Yeah. No. He's had his hand up a long time. Thank you, Mr. President. How concerned are you that Putin wants to go beyond Ukraine into other countries and the U.S. will have to get involved if he moves into NATO countries? Well, if he did move into NATO countries, he will be involved. We will be involved. The only thing that I'm convinced of is if we don't stop now, he'll be emboldened. If we don't move against him now with these
significant sanctions, he will be emboldened. Look, मेरी चिंता यह है कि अगर हमने यूक्रेन के लिहाज से पुतिन के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए तो वो अपने आप को और नेटो एलाइज तक फैलाने की कोशिश करेंगे। Why not sanction Putin directly today? I'm sorry, I can't hear you. Sir, India, which is a major defense partner of the United States, is India fully with you on the issue of Ukraine and Russia? Does the Defense Department of the United States... Sir, India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with the United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. हमारी भारत से बातचीत चल रही है। हमें इसका पूरा अभी आकलन करना जरूरी है कि भारत हमारे साथ पूरी तरह इस विषय पर है या नहीं है। हमारी भारत से बातचीत चल रही है और हमें इसका आकलन अभी करना है कि इस विषय पर भारत पूरी तरह हमारे साथ है कि नहीं है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जो बाइडेन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए कि क्यों पुतिन के ऊपर आज सैंक्शन नहीं लगाए गए, पुतिन के ऊपर, पर्सनली पुतिन के ऊपर क्यों सैंक्शन नहीं लगा पाए, ये जो बाइडेन जवाब नहीं दे पाए, ये जो बाइडेन जवाब नहीं दे पाए। इस वक्त ये बड़ी खबर है। वंदना झिंगन अमेरिका से हमारे साथ हैं। वंदना जी, जो बाइडेन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि पुतिन के ऊपर आपने क्यों सैंक्शन नहीं लगाए, ये बहुत बड़ी खबर है। बिना मूर्खा, nobody बिना मूर्खा on this number. You got a wrong number. मैम, क्या मुझे सुन सकती हैं? मैं सीधे चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, योर रिएक्शन सर। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। एक तो जो उम्मीद की जा रही थी, जो या तो वो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं स्विफ्ट पर, उस पर वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, और दूसरा पुतिन और उनके आसपास के जो लोग हैं, जो एलीट ग्रुप है, उनको जो एडवाइस करता है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने आपने देखा होगा 302 मेंबर ड्यूमा के उनके जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। तो यहां पर यह उम्मीद की जा रही थी जो वो इन लोगों के ऊपर और स्विफ्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, पर ये दो चीजें उन्होंने नहीं की। लेकिन सर वो ये भी नहीं बता पाए अशोक सर कि खाली पुतिन एज एन इंडिविजुअल उनके ऊपर क्यों नहीं सैंक्शंस लगाए गए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया, ही सेड थिंग्स आर ऑन माय टेबल बट इट विल टेक टाइम, वो बता ही नहीं पाए। क्यों नहीं किया? कई इस सवाल को कई बार इग्नोर कर गए। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास मेरे विचार से कोई इसका ठीक उत्तर नहीं था, क्योंकि इसके लिए दबाव इतना बन रहा था जो इसको ऊपर करना चाहिए। दिस शुड हैव बीन एन एग्जांपल और सभी के लिए भी। लेकिन सर एक और बड़ा सवाल, क्या आपको जो बाइडेन की आवाज में, क्या आपको जो बाइडेन की आवाज में एक हिडन डर नहीं दिखाई दिया जब एनर्जी की बात हुई? हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जो देखिए, जो भी आप कदम उठाते हैं, जो आप एक्शन लेते हैं, उसका रिएक्शन जरूर होता है। और ये जो खाली एक दो चीजें जो हैं, ये जो टेक्नोलॉजी का उन्होंने लिया है, उसका वो उनके अपने ऊपर या और जो देश हैं, साथी देश हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होगा। परंतु शायद वो स्विफ्ट के बारे में और ये पुतिन के अपने एलीट्स के ऊपर सैंक्शन लगाने में शायद यही बात है, यही डर है जो उसका ब्लोबैक, उसका जो रेपरकशंस, इम्प्लीकेशंस जो है, रिएक्शन है, वो शायद ज्यादा हो सकता है। और इसीलिए अभी उन्होंने उसके बारे में कुछ देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर हमारे सामने ये है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और मैं अपनी टीम को बताना चाहूंगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, जो बाइडेन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि पुतिन के ऊपर एज एन इंडिविजुअल आप सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं। उस सवाल का कई बार जवाब पूछा गया, वो जवाब नहीं दे पाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करें। वंदना झिंगन जी हमारे साथ हैं। वंदना जी, बार बार बाइडेन से पूछा गया कि आपने पुतिन एज ए इंडिविजुअल उनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए। वो ये कहते रहे कि हमारा ये सबसे बुरा दिन है रिलेशंस का, वो ये कहते रहे पूरी दुनिया हमारे साथ है, वो अकेले हैं, लेकिन इस सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए। नमस्कार निशांत एंड टू को पैनलिस्ट। जो आपने सुना, सबसे पहली बार आपने देखा होगा कि इस बार जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने एटलीस्ट मीडिया के सवालों का फेस किया, जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि पहले वो आते हैं, सिर्फ बोलते हैं और चले जाते हैं। तो इसका भी यहाँ काफी रिपरकशन हो रहा था कि बिकॉज ही नीड्स टू आंसर द प्रेस। बट लेकिन आज भी जो आंसर दिया है वो आपने भी सुना और मैं भी यहाँ देख रही थी अभी, तभी मैं आई वॉज ऑफ द एयर, कि वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और वो ये जानते हैं, इस वक्त सब लोग अंदर से जानते हैं कि जो सैंक्शंस है, उसका इतना सैंक्शंस रशिया पे पहले भी लग चुकी हैं,
पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं। और अभी तो रशिया के साथ में खुल के चाइना बैठा